ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ منوگڑو ضمنی انتخابات کے نتیجے کا کل ہوگا اعلان، صبح 8 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا ہوگا آغاز۔ روشنی ٹی وی K6 کی خصوصی پیشکش۔ شہر نظام آباد کی رہنے والی عالمی باکسر نکھت زرین ارجن ایوارڈ کے لیے منتخب، شہر و ریاست کے عوام میں خوشی کی لہر۔ ان کی اس کامیابی پر روشنی ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ DLSA کی جانب سے تلاسیمیا مریضوں کے لیے خصوصی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا ضلع عدالت کے ہاتھے میں انعقاد، کثیر تعداد میں افراد نے دیا خون کا عطیہ۔ ضلع جج سنیتا کنچالا تمام بلڈ ڈونیشن سے کیا اظہار تشکر۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کا دورہ بھیمگل اردو میڈیم اسکول کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے تحت کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے دی ہدایت۔ متحدہ ضلع MLC کے کویتا کی مدد سے شہر کے نگرام کے رہنے والی 2 خواتین کو بحفاظت قطر جیل سے لایا گیا واپس۔ متاثرہ خواتین کے افراد خاندان نے متحدہ ضلع MLC سے کیا اظہار تشکر۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر نظام آباد کے رہنے والی عالمی باکسر نکھت زرین ارجن ایوارڈ کے لیے منتخب، شہر و ریاست کے عوام میں خوشی کی لہر۔ ان کی اس کامیابی پر روشنی ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ شہر نظام آباد کی رہنے والی عالمی باکسر نکھت زرین، جنہوں نے اپنے والدین کی ہدایت پر باکسنگ کی دنیا میں اپنا قدم رکھا اور آج پوری دنیا کے باکسرز کو ہراتے ہوئے نہ صرف ضلع ریاست ملک بلکہ برے صغیر کے تمام ماہر ترین باکسرز کو ہراتے ہوئے کئی بار عالمی باکسنگ چیمپئن کا خطاب اپنے نام کیا، جبکہ شہر نظام آباد میں باکسنگ کے لیے کوئی زیادہ سہولت بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی سخت محنت کرتی رہی۔ جس سفر میں انہیں کافی مشکلات کا دور بھی آیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور 2011 میں البا وومنز جونیئر اینڈ یوتھ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں عالمی سطح پر پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا، اور آج تک یعنی 10 سال بعد بھی انہوں نے اسی حیثیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور حال ہی میں 2022 IBA وومنز ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر ملک کا نام روشن کیا۔ ایک چھوٹے شہر سے نکل کر انہوں نے عالمی سطح پر جو نام حاصل کیا ہے، اس پر آج پورے شہر ریاست ملک کی عوام کے لیے بالخصوص خواتین کے ایک مثال ہے، اور ان کی اسی محنت کے سبب حکومت ہند کی جانب سے باکسنگ کے زمرے میں ارجن ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ قبل میں بھی
वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने भी एक इजलास में इनकी खिदमत की सताइश की, जो हर हिंदुस्तानी का एक ख्वाब होता है। तलासेमिया से मुतासरा मासूम की मदद करने के लिए हर एक शख्स खून का अतिया देने का ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। शहर के इमारतुल अदलिया में ज़िले लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी में तलासेमिया सिकल सोसाइटी हैदराबाद के तौसे से क़याम अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप को मुस्बित रद्द अमल मिला। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने फैमिली कोर्ट कम 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज निज़ामाबाद शौकत जहां सिद्दीकी ने शिरकत की। तलासेमिया से मुतासरा अशखास की कीमती जिंदगी को ज़ाय होने से बचाने का इजहार किया। बातज़ा इंसदाद की फराहमी अमल में लाई गई। मैडम आज जो है ग्लोबल कॉज के लिए डिस्ट्रिक्ट जज ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसका डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता मैडम इतना इंकरेजमेंट और एंथुसियाज्म से कई लोग को मोटिवेट करें। आज का मकसद मेनली ब्लड डोनेशन तो कई लोगों का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज का थीम जो है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंडिविजुअल्स में एक जेनेटिक डिजीज़ की वजह से इनके RBCs जो है 120 डेज़ के अलावा 60 डेज़ में 50 डेज़ में टूट जाते हैं। यानी या स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, या मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फंक्शन ऑफ विच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन लोगों में क्या है जल्दी से ब्रेक डाउन होता है सका, और बॉडी में जो मैरो है। जिले कांग्रेस प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम ने जिले में कल दाखिल होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के मुताबिक जारी कामों का जायजा हासिल किया और अवाम से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए मुल्क को मुत्तहद करने की पहल की। आज जुकल असम्बली हल्के में हिंदुस्तान का बेटा, हिंदुस्तान का हर अजीज़ कायद, नौजवान कायद अली जनाब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के जो कन्याकुमारी से जो कश्मीर को भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जो पैदल यात्रा जो निकाले हैं, हम तमाम लोग उनकी यात्रा को खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर जो तेलंगाना में उन्होंने आकर निज़ामाबाद पुराना डिस्ट्रिक्ट और कामारेड्डी नया डिस्ट्रिक्ट जो जुकल असम्बली हल्के में जो उनका पैदल दौरा है, भारत जोड़ो यात्रा, नफ़रत छोड़ो यात्रा, आज हम लोग यहाँ पर जुकल असम्बली हल्के में पब्लिक मीटिंग के ग्राउंड में मौजूद है कि राहुल जी गुजरात इंतखाबात में BRS लेगी हिस्सा। बीजेपी के गुंडों के खिलाफ मुकाबला करने का गुलाबी पार्टी का फैसला। तेलंगाना की फलाही स्कीमात से मुल्क की अवाम मुतासिर। तमाम 182 हलकों के लिए 9100 BRS कायदीन व कारकुनान तैयार। रियासती वज़ीर आला KCR। गुजरात इंतखाबात में BRS लेगी हिस्सा। बीजेपी के गुंडों के खिलाफ मुकाबला करने का गुलाबी पार्टी का फैसला। तेलंगाना की फलाही स्कीमात से मुल्क की अवाम मुतासिर। तमाम 182 हलकों के लिए 9100 BRS कायदीन व कारकुनान तैयार। रियासती वज़ीर आला KCR। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गुजरात व हिमाचल प्रदेश में अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में खुसूसी तवज्जो देते हुए दोनों रियासतों के तमाम नशिस्तों पर TRS उम्मीदवार को खड़ा करते हुए बीजेपी को करारी शिकस्त देने के लिए मनसूबाबंदी के तहत कोशिश की जा रही है। TRS बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए दर हकीकत ये बात काबिले जिक्र है कि गुजरात के तमाम हिस्सों में तेलुगु लोगों की अक्सरियत है। इसी तनाज़े में सियासी मौज़ीन का ख्याल है कि अगर TRS मुकाबले में उतरती है तो यकीनी तौर पर बीजेपी को करारा झटका लगेगा। अगर TRS के कायदीन जो कि CM KCR की दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात का गुजरात में चलाई जा रही स्कीमों से मौजना करेंगे तो यकीनी तौर पर वहां पर मुकीम अवाम को असली गुजरात मॉडल में तरक्की होने के ताल्लुक से हकीकत सामने आ जाएगी, जिससे वहां पर सुकूनत पजीर अवाम बहस व मुबाहिसा होगा, जिसके जरिए TRS हुकूमत की दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात से अवाम मुतमईन होकर करीब गुजरात व हिमाचल प्रदेश में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में TRS पार्टी के तमाम नशिस्तों पर TRS पार्टी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
MLC के कविता ने एक बार फिर इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए जिंदगी के गुजर बसर के लिए खतर जाकर जेल में महरूस होने वाले मुतासरीन को सही सलामत पहुंचाया घर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने एक बार फिर हमदर्दी की बेहतर मिसाल कायम की। तफसीलात कुछ इस तरह से। ज़िले निज़ामाबाद के नगराम से ताल्लुक़ रखने वाले आसिया बेगम शेख नसीमा गुज़िश्ता 10 माह कबल ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए ख़तर का रुख कर एक घर में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान मुनासिब तनख्वाह ना देने के अलावा सही वक्त पर ग़िज़ा ना देकर हर वक्त हरासा मारपीट करने से तंग आकर वो राह फरार इख्तियार करने के बायस पुलिस मुलाजमिन की गिरफ्त में आ जाने के ताल्लुक से शहर निज़ामाबाद में मौजूद रिश्तेदारों के जरिए हासिल करदा मालूमात पर जागृति के जनरल सेक्रेटरी नवीन आचारी ने MLC के कविता के इल्म में लाया, जिस पर MLC के कविता ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए खतर में वाक़े जागृति सदर नंदिनी अब्बा गौड़ को इस वाक़े से वाकिफ करवाने की फौरी बात इन्होंने जिम्मेदार ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए जेल में महरूस मुस्तहिक़ीन को सिर्फ 10 यौम में बाहर लाने के बाद खतर ओहदेदारान से मुताल्लिक़ा तमाम मसाइल से वाकिफ करवाते हुए मुफ्त एयरपोर्ट टिकट का इंतज़ाम करने की वजह से मुतासरा मुस्तहिक़ीन सही सलामत अपने घर पहुँचने पर घर वालों ने MLC के कविता का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। तेलंगाना जागृति यूथ सदर मोहम्मद रेहान अहमद ఇది ఎన్నో రోజులు కొనసాగడంతో వాళ్ళు తప్పించుకుందామన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ CID పోలీసులను అప్రోచ్ చేయడానికి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ లోపల వాళ్ళ ఇంటి ఓనరు వాళ్ళకు వీళ్ళపైన కేసు పెట్టడంతో పారిపోయారని చెప్పి వీళ్ళను అక్కడ జైలుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఆ జైలు లోపల వీళ్ళు ఉన్నటువంటి సమయంలోనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళ సోదరిమణి జబీన్ గారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో మా ఆఫీస్కు కవితక్క గారి ఆఫీస్కు సమాచారం అందడంతో మేము అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో ఖతర్లో ఉన్నటువంటి జాగృతి అధ్యక్షులు నందిని గారు వీళ్ళు ఉన్నటువంటి జైలుకు వెళ్ళడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులతో మాట్లాడము, దాంతోపాటుగా వీళ్ళతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడారు. వీళ్ళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా మేము ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ధైర్యం చెప్తూ వస్తున్నాము. అక్కడ దేవుడి దయ వల్ల తొందరగా అంటే మనం ప్రయత్నం ప్రారంభించిన 10 రోజుల లోపలే వీళ్ళు జైలు నుంచి విడుదల కావడం జరిగింది. అట్లానే మనం చేసిన రిక్వెస్ట్ మీద వీళ్ళని ఇండియా కూడా ఫ్రీగా भैंसा मुस्तखर में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से मुफ्त टेलरिंग सेंटर का क़याम, ख़वातीन को भी हुनरमंद बनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। हाफिज़ मुनीरुद्दीन का बयान। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसे की जानिब से ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के गर्ज से मुफ्त टेलरिंग तरबियत के लिए मस्जिद हाजी साहब के नज़दीक सफ़ा टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें बिला मज़हब व मिलत तकरीबन 25 ख़वातीन ने दाखिला लिया। माहिर टेलर खातून की निगरानी में इन्हें मुफ्त टेलरिंग तरबियत दी जा रही है। वाज़ह है कि सफ़ा की जानिब से 7 साल से ख़वातीन के लिए अवैसी नगर में मुफ्त टेलरिंग तरबियत दी जा रही थी, जिससे हज़ारों ख़वातीन और लड़कियों ने हुनर सीख कर इस्तिफादा हासिल किया। अब ये टेलरिंग सेंटर खाजी गली नज़द हाजी साहब मस्जिद पर चलाया जा रहा है, ताकि बंगाली गली, ज़ैनुल आबिदीन गली, जुल्फ़िकार गली, पंजा गली, 12 इमाम गली, हारी गली, मकबरा एरिया की ख़वातीन इस कीमती हुनर को सीख कर इस्तिफादा हासिल करे। इस मौके पर सफ़ा ज़िम्मेदार हाफिज़ मुनीरुद्दीन साहब, खादिम शेख इरफान ने सफ़ा की फलाही व रफ़ाही खिदमात से लोगों को वाकिफ करवाते हुए भैंसे के तमाम माविनीन का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमको एक नेक मकसद के लिए पैदा किया और इस खिदमत खल्क़ काम में हमको जोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल जो है सो जितने भी है वो पूरे काम हो रहे हैं। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह ये है सफ़ा बैतुल माल के काम में से कि अब तक टेलरिंग सेंटर मदीना कॉलोनी में था 6-7 साल से। अब वहाँ पे तकरीबन लोग हमारे बहनें बेटियाँ इस काम को सीख लिए हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं और इंशाअल्लाह फिर अब यहाँ पे अब खाजी गली में भी इस एरिया में बहुत कमी महसूस कर रहा था मैं। 5-6 महले हैं, 12 इमाम, ज़ैनुल आबिदीन, खाजी गली, फिर से शकील गली, गोरबा गली, ये सब पूरा हाजी साहब का एरिया। ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से मुकामी अवाम को चौकस रहने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफ़ती बयान।
ضلع نظام کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے صحافتی نشست کا اہتمام عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ کمشنریٹ کے احاطے میں اس ہفتے میں انسٹاگرام، فیس بک، فلپکارٹ و پارٹ ٹائم ملازمت کے علاوہ کم سرمایہ سے زائد فائدہ حاصل کرنے کے تعلق سے آنے والے میسیجز پر بھروسہ کر کے کئی عوام دھوکہ دہی کا شکار ہوئے ہیں، جس میں SBI یونو KYC پین کارڈ اپڈیٹ کے نام سے ہونے والی دھوکہ دہی شامل ہے۔ سائبر مجرمین فیس بک میں آپ کے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے تعلق سے اکاؤنٹ کریٹ کر کے رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کسٹمر کیئر نمبر کے لیے گوگل میں سرچ نہ کریں کیونکہ اس سے متعلقہ ایپ پر ہی نمبر موجود ہوتا ہے، اور سائبر مجرمین کی جانب سے اینی ڈسک نامی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے جسے حاضر دماغ کے ساتھ ناکام بنائے۔ اسی طرح سے سائبر مجرمین کی جانب سے دھوکہ دہی کا شکار ہونے والے فوری طور پر ٹول فری نمبر 1930 یا ڈائل 100 پر رابطہ پیدا کرنے کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے منوگڑو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے کل اتوار کو نتائج۔ تلنگانہ کے منوگڑو اسمبلی حلقے کے ریٹرننگ آفیسر RO روہت نے بتایا کہ ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نلگونڈا میں FCI کے گودام میں گنتی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ RO روہت نے کہا کہ 21 ٹیبل پر 15 راؤنڈ میں گنتی کی جائے گی اور ہر راؤنڈ میں 21 پولنگ مراکز کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ سب سے پہلے 686 پوسٹل بیلٹ ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور پھر EVM کو کھولا جائے گا۔ 6 نومبر اتوار کو ووٹوں کی گنتی 8:30 پر شروع ہوگی اور ہر ٹیبل پر ایک گنتی سپروائزر اور دیگر عہدیداروں کے امیدوار یا اس کے ایجنٹ کو گنتی کے مراکز میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور کل اندرون 9 بجے تک پہلے راؤنڈ کے نتائج جاری کیے جائیں گے۔ AICC راہل گاندھی کی قیادت میں ضلع سنگاریڈی چوتاکورا سے شروع ہونے والے پیدل سفر کا مقامی عوام کی جانب سے پرزور استقبال کیا گیا۔ AICC راہل گاندھی کی قیادت میں صبح کے اولین ساعتوں میں شروع ہونے والی پیدل سفر جوگی پیٹ سے ہوتے ہوئے دانم پلی تک جاری رہنے کے دوران کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین، عوامی نمائندے، کارکنان و مقامی عوام کی جانب سے پرزور استقبال کرتے ہوئے راستے پر بڑے بڑے فلیکسی بورڈ، کٹ آؤٹ، گیسٹ بیلون کا قیام عمل میں لا کر عوام اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے باعث ماحول میں ہلچل نظر آئی۔ نظام آباد میئر نیتو کرن نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے ڈویژن نمبر 16 کنال کٹے میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے CC روڈ کی تعمیری کاموں سے متعلقہ اراضی پر رکھا سنگ بنیاد۔ نظام آباد میئر نیتو کرن شیکھر نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے ڈویژن نمبر 16 کنال کٹے میں 10 لاکھ روپے مالیاتی رقم پر مبنی CC روڈ تعمیری کاموں سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دیتے ہوئے تعمیری کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر میئر نیتو کرن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے اقتدار پر فائز ہونے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت و اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کی کاوشوں کے سبب شہر نظام آباد کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے فنڈز کی فلفل منظوری عمل میں لاتے ہوئے شروع ہونے والے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچایا جا رہا ہے، جس سے ضلع میں مقیم عوام TRS حکومت سے کافی مطمئن ہے۔ میئر نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کام تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں صرف 8 سالوں میں مکمل کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے ریاست تلنگانہ میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے تحت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، جس کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ڈویژن کارپوریٹر پنچا ریڈی پرووالیکا، TRS پارٹی سے وابستہ قائدین پنچا ریڈی، انیتا سری دھر، مدھو، میونسپل انجینئر سدرشن ریڈی، سبھاش، ملازمین، مقامی عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రతి వార్డులోనూ కూడా ప్రతిరోజు ఏకక శంకుస్థాపనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి। మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు కూడా 16వ డివిజన్లో ఈరోజు పట్టణ ప్రగతి 10 లక్షలతోని కెనాల్ కట్ట వద్ద ఒక CC రోడ్ని ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। श्रीकोंडा मंडल के तमाम मौजूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाने का मंडल सोसाइटी चेयरमैन महिलाराम गंगा रेड्डी ने किया इजहार। श्रीकोंडा मंडल के सोसाइटी चेयरमैन महिलाराम गंगा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से A ग्रेड व B ग्रेड पर मुक़र्रर करदा कीमत को धान खरीदारी मराकिज़ पर किसान अपनी पैदावार को फरोख्त करने पर इन्हें मुनासिब कीमत फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजू डी गोवर्धन की
काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में अनाज खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरह दरपली ZPTC बाजरेडी जगन की जानिब से किसानों से मुताल्लिक़ा हर एक मसाइल को फिलफुर हल करते हुए इन्हें बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने का इजहार किया। सहकार संघం ఆధ్వర్యంలో మేము వరి ధాన్యం కొనుగోలు పోయిన నెల 31వ తారీఖు ఈ నెల 1వ తారీఖులో వరకు మొత్తము మాకున్న 14 సెంటర్లలో ధాన్య కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించినాం। मोरताल मंडल ज़रई ओहदेदार लावनिया ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम किसानों को ऑयल फार्म फसल की काश्त के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई। मोरताल मंडल के ज़रई ओहदेदार लावनिया ने खिताब करते हुए कहा कि 1 एकड़ पर ऑयल फार्म पौधों की काश्त के लिए दरकार 50 पौधों पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी और इसके अलावा ड्रिप के आलात पर भी सब्सिडी होगी। लिहाजा किसान पट्टा, पासबुक, आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स के साथ हर एक पौधे पर 20 रुपये के तहत DD बनकर ज़िम्मेदार ओहदेदारों को हवाले करे। इसी तरह से लाल जवार की काश्त करने वाले किसानों को बाई बैक मुआहदा होने पर ही लाल जवार की काश्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में APS सोसाइटी चेयरमैन बदम अशोक रेड्डी, AEO श्रीलता मोहन महेश, रैतु बंधु कोऑर्डिनेटर गोपी डी गंगा रेड्डी, ऑयल पंप क्लस्टर ऑफिसर मनोज मुकामी किसानों ने शिरकत की। ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली म्यूनसिपल चेयरपर्सन श्योता की ज़ेर निगरानी में तरक्याती कामों का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली म्यूनसिपल चेयरपर्सन श्योता की ज़ेर निगरानी में पोचम्मा तालाब के पास सीसी रोड व जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए जाने वाले पार्क से वाबस्ता कामों के अलावा रड़गम बाला बस्ती में दवाखाने में मुनक़दा तरक्याती कामों पर मबनी प्रोग्राम में मुक़ामी रुकन असम्बली D चिन्नैया ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि बेलमपल्ली शहर के पोचम्मा तालाब के पास 45 लाख रुपए मसारिफ से सीसी रोड तामीरी कामों के अलावा मार्केट में जायद कमरे की तामीर के साथ साथ रडगम बाला में बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाने को काफ़ी खुशान करार दिया। రడగం బాల బస్తీ, సుభాష్ నగర్, అట్లాగే శంషీర్ నగర్ ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా కొంత దూరంగా ఉంది కాబట్టి మధ్యలో రైల్వే ట్రాక్, మధ్యలో నేషనల్ హైవే వస్తున్నది కాబట్టి కొంతమంది పేద ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతున్నదని చెప్పగానే మరి వారు ఇమ్మీడియట్లీ బస్తీ దవాఖానా కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది। भीमगल मंडल के बाबापुर देहात में अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहक़िन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की तक़सीम अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के बाबापुर देहात में मुकामी सरपंच आयशा फिरदौस अतीक ने तेलंगाना के दौर इख्तिदार में CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़िन में फ़राहमी अमल में लाई। इस मौके पर दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहक़िन में चेकों की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिनगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम MA रहमान, MPTC MA सुरजील व दीगर ने शिरकत की। किसान हुकूमत की जानिब से क़ायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ पर धान के ज़ख़ीरे को फ़रोख्त करने का ओहदेदारान ने किया इजहार। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक भीमगल मंडल के कारेपल्ली, देवकापेट, तलापल्ली देहात में धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से A ग्रेड धान व B ग्रेड धान पर कीमत मुक़र्रर की गई। लिहाजा किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़ायम किए गए अनाज खरीदारी मराकज़ पर फ़रोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का ओहदेदारान ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु समिति मंडल सदर बदावत शर्मा नायक, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर रमावत तुकाजी नायक, CC श्रीनिवास, मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच L अनिल नायक, बदावत चंद्रकला, वासु नायक, B जमुना, MPTC गोविंद नायक व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 12 नवंबर को दौरा रामागुंडम, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इंतजामात आला सतही इजलास में जायजा लिया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 12 नवंबर को मौजूदा दौरा रामागुंडम के इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार, रामागुंडम फर्टिलाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AK जैन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। सुमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तफ्यूज़ की है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के मुकाम की सिक्योरिटी, अमन ज़ब्त की सूरत हाल और दीगर इंतजामात वज़ीर आज़म सिक्योरिटी से मुतालिक ब्लू बुक के मुताबिक किए जाएंगे। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, सेक्रेटरी GAD शेषाद्री, इंस्पेक्टर जनरल फायर सर्विस संजय जैन, कमिश्नर रामागुंडम चंद्रशेखर रेड्डी, कलेक्टर पेद्दापल्ली S सत्यनारायण और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। आधार कार्ड को अपडेट करवाने का मशवरा, निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों वॉल पोस्टर की जारी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज 10 साल मुकम्मल करने वाले आधार कार्ड होल्डर्स को अपने अपने कार्ड्स अपडेट करवा लेने का मशवरा दिया। इस ताल्लुक से अवाम को शऊर दिलाने और बेदार करने से मुतालिक वॉल पोस्टर्स की इन्होंने रस्म इजराई अंजाम दी। इन्होंने मज़ीद कहा कि आधार अपडेट करवाने से कई बेशुमार फ़वाइद है। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात, पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी है। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात और बैंक खदमात हासिल करने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी, इसीलिए हर 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बैंक खातों को खोलने और सरकारी कर्ज हासिल करने, स्कॉलरशिप, इनकम टैक्स वगैरह के लिए आधार का अपडेट रहना ज़रूरी है। इसके अलावा मुल्क भर में कहीं से भी राशन हासिल करने के लिए अपडेट आधार मौन साबित होगा। पैदाइशी सदाकतनामा, सुकूनत की तफसीलात वाला सदाकतनामा पेश करके अपने करीबी आधार सेंटर से अपडेट कर सकते हैं। अगर कुछ मालूमात हासिल करना हो तो 1947 को फ़ोन करने का मशवरा दिया। इस मौके पर UIDAI हैदराबाद इलाकाई ऑफिस जनरल मैनेजर शोभन, ई सेवा ज़िले मैनेजर कार्तिक, TSTS DM अर्जुन और आधार सेंटरों के जिम्मेदारान शाहिद, खावन, लक्ष्मी नारायणा, नसीर और दीगर मौजूद थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, तमाम केस दहली मुंतकिल होंगे। मुल्जिम और साबिक BJP तर्जुमान नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ आहानत आमेज रिमार्क्स केस में मुल्जिम और साबिक BJP लीडर नवीन जिंदल को बड़ी राहत दी गई है। अदालत ने जिंदल के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को दहली पुलिस को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM संदेश की बेंच ने अपने हुक्म में नवीन जिंदल को दहली पुलिस की तहकीकात मुकम्मल होने तक अबूरी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। दरअसल नवीन जिंदल ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत के बाद अदालत ने जिंदल को दहली हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने की इजाज़त दी और कहा कि आइंदा तमाम FIR भी तहकीकात के लिए दहली पुलिस को मुंतकिल कर दिए जाएँ। नुपुर शर्मा केस में भी मुकदमात दहली पुलिस को मुंतकिल कर दिए गए। इससे कबल अदालत ने BJP की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा के मामले में भी ऐसा ही हुक्म जारी किया था। अदालत ने इनके खिलाफ तमाम रियासतों में दर्ज मुकदमात को दहली पुलिस के इंटेलिजेंस, फ्यूटन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। भीमगल ज़रई ओहदेदार AD मलैया के ज़ेरे निगरानी में वेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम किसानों को ऑयल फार्म फसल की काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर भीमगल ज़रई ओहदेदार AD मलैया ने मंडल के अंसापुर लोकोरा देहात में मुक़ीम अवाम को ऑयल फार्म फसल की काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर भीमगल ज़रई ओहदेदार AD मलैया ने खिताब करते हुए कहा कि ऑयल फार्म फसल के पौधे पर किसानों को 90% सब्सिडी दी जाएगी, जो कि किसानों के लिए काफी कारआमद होगी और ऑयल फार्म फसल की काश्त करने वाले किसान ज़रई ओहदेदारान से रब्त पैदा करके मुफीद मालूमात हासिल करने की तजवीज़ दी और लाल जवार की काश्त करने वाले किसान सीड कंपनी से बाईबैक मुआहिदा करने के बाद ही फसल की काश्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भीमगल डिवीज़न ज़रई ओहदेदार के मलैया, अंसापुर मौजे के सरपंच एडिला राजेश्वर रेड्डी, MPTC रविंदर, मौजे के रैतु बंधु समिति मेंबर रामुलू, मंडल रैतु बंधु समिति समीर महिपाल, मंडल ज़रई ओहदेदार नरसैया प्रशांत किसानों ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर जमात इस्लामी तेलंगाना सेक्रेटरी अब्दुल हकीम के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद।
नंदीपेट मंडल के मुकाम पर जमात इस्लामी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जमात इस्लामी तेलंगाना सेक्रेटरी अब्दुल हकीम ने शिरकत करते हुए कहा कि कुरानी तालीमात के मुताबिक अपनी तर्ज ज़िंदगी गुजारते हुए गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करने के अलावा मास्क के मामले में ना फंस कर कुरानी तालीमात के मुताबिक दीनी तर्ज ज़िंदगी को गुजारने का इजहार किया। नहीं ना, कुरान खाली शादियों में तोहफा देने के लिए आया नहीं ना, कुरान घर में चोरी हुई है तो कसम खिलाने के लिए आया नहीं, नहीं, कुरान आया किसी और मकसद के लिए अल्लाह ताला भेजा, वो छोड़ के हम लोग ये सब काम कुरान से ले रहे हैं। तो असल में कुरान क्यों आया, ये आज मैं आप लोगों के सामने कुछ कुरान की आयतों की रोशनी में दलील के साथ इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग कुरान क्यों आया, पहली चीज कुरान इस दुनिया में अल्लाह ताला भेजा, हम इस कुरान पर ईमान लाए। कुरान क्यों भेजा इस दुनिया में, जो भी इंसान है इस दुनिया में जितने इंसान रहते हैं उन सबको उस कुरान पर क्या करना है। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने भीमगल मंडल का दौरा करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम उर्दू मीडियम स्कूल का लिया जायजा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने भीमगल शहर में वाक़ उर्दू मीडियम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के अलावा इसी मंडल के पल्लीकोंडा जिले परिषद हाई स्कूल का मुशाहिदा करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। तातुल के शिकार कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इसी तरह से कलेक्टर ने फैन, पाइपलाइन, किचन शेड, टॉयलेट व दीगर कामों को बारीक बीनी से जायजा लेकर ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मनोगुड़ो ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे का कल होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का होगा आगाज। रोशनी टीवी K6 की खुसूसी पेशकश। शहर निजामाबाद की रहने वाली आलमी बॉक्सर निखत जरीन अर्जुना अवार्ड के लिए मंतखब। शहर व रियासत के अवाम में खुशी की लहर। इनकी इस कामयाबी पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। DLSA की जानिब से तलासेमिया मरीजों के लिए खुसूसी ब्लड डोनेशन कैंप का जिले अदालत के हाथे में इनेकाद। कसीर तादाद में अफराद ने दिया खून का अतिया। जिले जज सुनीता कुंचाला तमाम ब्लड डोनेशन से किया इजहार तशक्कुर। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा भीमगल उर्दू मीडियम स्कूल का जायजा हासिल करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए दी हिदायत। मुत्तहदा जिला MLC के कविता की मदद से शहर के नगराम के रहने वाली 2 खवातीन को बहिफाजत खतर जेल से लाया गया वापस। मुतासरा खवातीन के अफराद खानदान ने मुत्तहदा जिला MLC से किया इजहार तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।